عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی جائیں، کم ترقی یافتہ ملکوں پر بڑھتے ہوئے قرضوں کا بوجھ کم کیا جائے اور ان کے سماجی تحفظ تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوحہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ملکوں کی 5ویں کانفرنس سے خطاب۔ کوئی بھی معاشرہ اعلیٰ اقدار کے بغیر مہذب اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کئی معاشرے ذاتی مفادات کے باعث دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ جب تک نچلے طبقے کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ عمران خان کو مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا، ورنہ پیش کر دیا جائے گا۔ عمران خان اور اس کے حواریوں نے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رہیں گے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہا ہے اور اداروں کے خلاف مہم جوئی کر رہا ہے۔ احتساب کا نظام عمران خان کے آگے بے بس ہے۔ اس شخص نے پاکستان کے قانون اور آئین کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے بات چیت۔ عمران خان ریاست مدینہ کے دعوے میں بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ دوسروں کے بچوں کو جیل بھرنے کے لیے راغب کرتے ہیں، جبکہ خود چھپ جاتے ہیں۔ وہ پہلے ڈراتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں۔ اگر غربت، معیشت اور جمہوریت کی مضبوطی پر بات کرنی ہے تو ہم تیار ہیں۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ بولان میں کمڑی پل کے نزدیک بلوچستان کانسٹیبلری ٹرک کے قریب دھماکہ، 9 اہلکار شہید، 11 زخمی۔ جائے واقعے سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت، شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ کہاں رہتے ہو؟ تمہیں کوئی جانتا ہے؟ تم کسی کو جانتے ہو؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ فن اداکاری کا ایک اور رخشندہ باب بند ہو گیا۔ اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم کے نامور اداکار محمد قوی خان بھی اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ قوی خان کو ان کی فنکارہ صلاحیتوں کی اعتراف پر پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر ڈاکٹر عارف الوی، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا قوی خان کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 کا 22واں میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز راولپنڈی میں مد مقابل۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان رواں سیزن کا یہ دوسرا میچ ہے۔ پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کی ٹیم 5ویں جبکہ گلیڈیٹرز آخری پوزیشن پر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو 86 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے۔ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے، انرجی کرائسس۔
बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की तरक्की और खुशहाली हमारी पॉलिसी का महवर है। अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कम तरक्की याफ्ता मुल्कों पर बढ़ते हुए कर्जों का बोझ कम किया जाए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की 5वीं कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान और मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया की आबादी का 14% कम तरक्की याफ्ता मुल्कों पर मुश्तमिल है, जबकि इसके बरक्स आलमी GDP में इनका हिस्सा 1.3%, तिजारत में 1% और आलमी सरमायाकारी में 1.4% है। इन वजूहात की बिना पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में अदम मसावात, गुर्बत और इफलास में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पायदार तरक्की के लिए आलमी शराकत दारी को फरोग देना होगा। We must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. The historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled. We must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. We must provide universal access to social protection. We also need to reform the unequal international financial architecture, make it people-centric, and international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया और कहा कि 2031 तक 15 LDCs का तरक्याती एजेंडा मुकम्मल करने का हदफ काबिल तारीफ है। Concrete measures agreed upon in the program of action, such as online university, an international investment support center, and a system of food stocks for the LDCs, are laudable. Putting the welfare of the millions of people belonging to the LDCs at the center of affirmative policy action remains our most cherished goal. Let me assure you that Pakistan will actively support the implementation of the Doha Program of Action, including within the framework of South-South cooperation. वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की तरफ से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कोई भी मुआशरा आला अक़दार के बगैर मुहज़्ज़ब और कामयाब नहीं हो सकता। आज की दुनिया में कई मुआशरे ज़ाती मफादात के बायस दोहरा म्यार रखते हैं। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि आला अक़दार के हुसूल के लिए तमाम मकतबा फ़िक्र बराबर के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमदर्दी और भाईचारे की बुनियाद पर तश्कील पाने वाला मुआशरा माशी तौर पर कमज़ोर अफराद की फलाह व बहबूद का ख्याल रखता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जब तक निचले तबके को ऊपर नहीं उठाएंगे, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हमारा आपका जो ख्वाब है एक मजबूत कौम का, वो ख्वाब जी रहा है। इंक्लूसिवनेस के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। द एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ अ सोसाइटी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, नॉट पावर। दुनिया के अंदर इस वक्त कोई एथिक्स और मोरालिटी नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। और दुनिया को जो भूख है
वो तो ये है कि कोई तो दिखाए कि मोरालिटी की बुनियाद पर भी फैसले हो सकते हैं. वी मस्ट राइज टू द ओकेजन. आई एम प्राउड ऑफ दिस कंट्री. आई वांट यू टू बी प्राउड ऑफ दिस कंट्री. बेनतहा अचीवर्स हैं. जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, कोविड के अंदर आप देखिए कि कामयाबी की, न्यूक्लियर डिटेरेंट आपने बनाया, कामयाबी की इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास हुआ. इजलास में तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की. यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया गया. इस इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान हमारी पार्टी की असल ताकत है. तंजीमी मामलात में इनकी मुशावरत को यकीनी बनाया जाएगा. इजलास में यूथ विंग के अहदेदारों को टास्क भी सौंपे गए. इजलास में सोशल मीडिया पर यूथ विंग की कारकर्दगी को बेहतर करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को मजीद फाल बनाने के लिए तजावीज़ को भी हतमी शक्ल दी गई. वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाला इमरान खान अपने दौर में लूट मार करता रहा है. इमरान खान को मुकदमात का सामना करने के लिए अदालतों में पेश होना होगा. इस्लामाबाद में होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़मान पार्क गई थी. दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान और हवारियों को लूटमार का जवाब देना होगा. अदालत के हुक्म की तामील के लिए एक मौसर जो है वो कदम उठाया जाए जो विजिबल भी हो. तो इस मकसद के लिए वहाँ पे पुलिस की जो है वो टीम गई थी. जिस दिन उसे गिरफ़्तार करना हुआ तो इंशाल्लाह वो अदालत में जो है वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा ताकि वो अपने किए की जो है अपने किए को फेस करें. उन्होंने कहा कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है. इमरान एंड कंपनी ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया. जिस वक्त ये सारा जो है ये मातम कर रहा था, जाली मातम, उस वक्त वो फराह गोगी जो इसकी फ्रंटमैन है वो अरबों रुपए जो है वो बाहर मुंतकिल कर रही थी. और डिठाई का आलम देखें कि ये आज से 3 रोज़ पहले कह रहा था कि जी मेरे ऊपर कोई एक धेले की करप्शन नहीं साबित हो सकती. इसे जवाब देना पड़ेगा अदालत में आके. मुल्क में इंतखाबात के सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, वो इस पर फैसला करेगा. मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोलान में मोटरसाइकिल खुदकश बमबार ने हमला किया जिसके बायस 9 शहादतें हुई. वफाकी हुकूमत जो है वो हर तरह से सूबाई हुकूमतों, जो सूबाई हमारी CTDs हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ पूरी तरह से कमिटेड है, राब्ते में है. और इस दहशत गर्दी का जो नासूर है इसका कलाकुमा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो कोशिश जो है वो पीछे नहीं रखी जाएगी. इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की गई है. हालिया इक़दामात की मज़म्मत करता हूँ. शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है. आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹس گرفتاری برقرار رہیں گے. توشہ خانہ کیس میں وارنٹس منسوخی کے لیے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست ایڈیشنل سیشن جج نے مسترد کر دی. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں عمران خان کے وکیل قیصر امام نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں انہیں عدالت پیش ہونے کا کوئی راستہ بتایا جائے. استدعا ہے کہ عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرے. اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ 28 فروری کو صبح ہی عمران خان کے وکلا نے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں اس عدالت نہیں آئیں گے. وارنٹس گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے وارنٹس منسوخی کے لیے دائر درخواست خارج کر دی. عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان کو کل 7 مارچ تک پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ گھڑی چور پولیس کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس شخص نے پاکستان کے قانون اور آئین کو یرغمال بنا رکھا ہے. بڑے دنوں سے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ گھڑی چور ایک چوہا گیدڑ جب پولیس کو دیکھتا ہے تو اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو باہر نکل کے بڑکے مارتا ہے. وہ شخص نے پورے قانون کو پاکستان کے آئین کو یرغمال بنایا ہوا ہے لیکن پھر بھی عدم کے نظام کی پلکوں کے اوپر سوار ہے. سب کو معلوم ہے کہ وہ گیدڑ جب بل سے نکلے گا وہ چوہا جب بل سے نکلے گا جتنا اونچا چیخے گا جتنی زیادہ چھلانگے مارے گا جتنا کودے گا اتنی ہی جلدی ریلیف ملے گا. عدالت آئے گا عدالت پہ حملہ کرے گا دھاوا بولے گا گنڈا گردی کرے گا تو بیل مل جائے گی. فورن ایجنٹ بدماشی کرے گا جج کو گالی دے گا عدالت کو دھمکائے گا تو بیل مل جائے گی. اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو قانون کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چوہا گیدڑ عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہوتا کیونکہ یہ گھڑی چور بھی ہے یہ فورن ایجنٹ بھی ہے. اس نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ جس دن یہ عدالت کے آگے پیش ہوگا یہ پکڑا جائے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے سابق چیف جسٹس کو سیاست سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے. کہتے ہیں ثاقب نثار پی ٹی آئی کے سہولتکار ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے مزید کیا کہا یہ بتا رہے ہیں وقار حیدر اپنی اس رپورٹ میں.
वजीर आजम के मोमने खसूसी अता तारड़ कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि सियासत सियासतदानों का काम है, वो पीटीआई की तर्जमानी करना छोड़ दें और इमरान खान के सहूलतकार न बने। आप अब तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब में फलां सलाहियत है, हमें आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज आपने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से बात की और उन पर तनकीद की। आज आप तर्जुमान हैं इमरान खान के, माजी में आप उनके सहूलतकार थे। क्या आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि जब पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 56 कंपनियों का रौला किसने डाला? साफ पानी कंपनी के सीईओ को बुला के घंटों घंटों कटहरे में खड़े होके उससे बदजबानी किसने की? मोहम्मद खसूसी अता तारड़ बोले, इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, जबकि पीटीआई दौर में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। जब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करवाया, एक तरफ इमरान न्याजी का ऑफशोर सर्विसेज न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का केस आता है, आप उसको क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है। हमें सजाएं दिलवाई, हमें दीवार से लगवाया, हमारे ऊपर सुपरवाइजरी जज बिठाए। मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए सुपरवाइजरी जजेस ने डे टू डे उस केस को चलवाया। और दूसरी तरफ एक लाडला जो आज भी अदालतों को ललकारता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं वारंट हूं, बेल हो, जो मर्जी हो, मैं अपनी मर्जी करूंगा। मोहम्मद खसूसी अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान अब भी लाडला बना हुआ है, मुकदमात से भागने के बजाय सामना करे और तोशा खाना का जवाब दे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुल्क का कानून अमीर गरीब सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान रियासत मदीना के दावे में भी दोहरा म्यार रखते हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान दूसरों के बच्चों को जेल भरने के लिए रागिब करते हैं जबकि खुद छुप जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पुलिस के डर से एनआरओ मांग रहे हैं, पहले डराते हैं फिर माफिया मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब, मईशत और जमहूरियत की मजबूती पर बात करनी है तो हम तैयार हैं। अगर अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को इस बात पे कि उसने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली और उसको कहो कि सारी जिंदगी के लिए तुम डिसक्वालिफाइड हो, इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते, पार्टी के सरबराह नहीं बन सकते। एक तरफ तो ये बात है, एक तरफ तो ये है रियासत मदीना, और दूसरी रियासत मदीना है जहां पे मलिक रियाज साहब को $250 मिलियन का आप तोहफा देते हैं। काबीना में बैठ के काबीना के फैसले के जरिए एक शख्स को प्रोटेक्शन देते हैं। $250 मिलियन वो जो सरकारी खजाने में आने थे, जिससे अस्पताल चलने थे, जिससे स्कूल चलने थे, जिससे यतीम खाने बनने थे, वो पैसे आपने उठा के एक फर्द वाहिद को दे दिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दोनों गैस कंपनियों को घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाने के औकात में बिला तात्तुल गैस फ्राहमी को यकीनी बनाने की हदायत की है। खेती बाड़ी जो है उसका मौसम आ रहा है तो गैस के काफ़ी ज़खायर जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़ते हैं फर्टिलाइज़र को देने के लिए। हमारी क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इम्बैलेंस है तो इंडस्ट्री को भी देते हैं। तो हमने जो औकात तय की है, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक गैस आनी चाहिए हर जगह पे, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक गैस आनी चाहिए हर जगह पे, और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक गैस आनी चाहिए हर जगह पे। इस वजह से कि ये वो औकात हैं जिनमें खाना बनाया जाता है। विफाकी वजीर ने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी के लिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आइंदा माह पहला ऑर्डर दे देंगे, जिसके बाद सस्ते तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा फवाद हसन फवाद के खिलाफ जुर्म साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अदालत फवाद हसन फवाद, वकार हुसैन, रबाब हुसैन और अंजुम हुसैन को बाइज्जत बरी करती है। इस्तिगासा के 19 गवाहों फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों से मुतालिक कोई शहादत नहीं दे सके। फैसले में कहा गया है कि नैब ऐसी कोई शहादत नहीं फराहम कर सकी जिससे फवाद हसन फवाद और उनके ख़ानदान पर करप्शन के जरिए असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित हो। बलूचिस्तान के इलाके बुलान में कमड़ी पुल के नज़दीक बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाके से 9 एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। बुलान कमड़ी पुल बलूचिस्तान कांस्टेबलरी जवानों पर हमला खुदकुश था।
DPO सिब्बी यूसुफ भंगन ने तस्दीक की है कि धमाका खेज मवाद मोटर बाइक में नस्ब और हमला आवर बाइक पर सवार था। हमले में एक सिविलियन भी जख्मी है। BC बैंड पार्टी के ट्रक में 22 अहलकार मौजूद थे। वाक़या सिब्बी से 15 किलोमीटर फासले पर बोलान के इलाके में पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल और CMH मुंतकिल किया गया। इस वक्त 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर से 8 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिबी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा है कि शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मज़मूम एजेंडे का हिस्सा है। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने शहदा के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत भी की। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जल्द ख़त्म करेंगे। सदर ममलिकत ने शहदा के अहल खाना से ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। खबर शामिल करेंगे अफगानिस्तान से, जहां मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने के बाद जामियात में आज से तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। ताहम तालिबात की तालीम पर पाबंदी अब भी बरकरार है और सिर्फ तलबा को यूनिवर्सिटीज़ जाने की इजाज़त दी गई है। तर्जमान अफगान वज़ारत बराए आला तालीम ने लड़कियों की तालीम के हवाले से कोई वजाहत नहीं की है। कुछ बात करेंगे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 97 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,434 पर पहुंचकर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 215 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 119 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 22 करोड़ 15,51,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 25 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा थी। आज सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज के शेयर्स में हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 54 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपए 92 पैसे हो गई है। सरसब्ज़ो शादाब घास, हसी फूल और ऊंचे दरख्तों ने सी व्यू कराची का नज़ारा मजीद दिलकश बना दिया है। कई एकड़ पर फैली हरियाली साहिल पर आने वालों का इस्तकबाल कर रही है। ये है कराची का सबसे मशहूर साहिल सी व्यू। अगरचे कराची में बेशुमार तफरीही मकामात हैं, लेकिन साहिल समंदर की बात ही अलग है। साहिल समंदर से लगाव रखने वाले बेशतर अफराद सी व्यू का ही रुख करते हैं। इसे मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से 35 एकड़ से जायद रकबे पर हरियाली के लिए घास लगाई गई है, जहां कराची के रिवायती फूल और दरख्त खूब फल फूल रहे हैं। सी व्यू से अच्छी कोई जगह तो है नहीं, इसको और भी जो है ना जी डिज़ाइन करना चाहिए अच्छे तरीके से। हम इस्लामाबाद से हैं, यहाँ क्लिफ्टन बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का समुंदर और यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये जो जदीदियत हम देख रहे हैं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लगा, काफी बड़ा अजीम मंजर पेश करता है ये समंदर। हरियाली और सफाई साफ सुथरे माहौल के लिए बहुत अहम है, मगर आगाही भी उतनी ही जरूरी है। आवाम को चाहिए कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और साहिल की खूबसूरती को बरकरार रखें। तफरीह के मतलाशियों और साहिल समंदर से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खूबसूरत और नायाब परिंदों के शौक को जरिए आमदन बनाने के लिए मुल्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब का अहवाल जानेंगे फरहान मिर्जा से। साउदर्न बजरीगर क्लब के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में फनांसर और शौकीन अफराद को नायाब तोतों बजरीगर की कारोबारी सतह पर परवरिश और मार्केटिंग के हवाले से खुसूसी तदाबीर से आगाह किया गया। तकरीब में पंजाब भर से शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूबसूरत रंगों के हामिल तोतों को देखकर खुशी का इजहार किया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल जो अकॉर्डिंग टू चल रहा है मार्केट में, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। ब्लैक विंग ब्लैक फेस, आम जुबान में जिसको हम काला तोता भी कहते हैं, ब्लैक फेस हैं और डन फेलो हैं। इन बर्ड्स के जो मार्केट वैल्यू करंट अभी चल रही है, जिनके मैंने आपको नाम लिए, दैट इज़ अबाउट 1.5 लाख से लेके 10 लाख तक
सिंगल बर्ड जो है वो कॉस्ट करता है। नायाब और खूबसूरत बर्ड्स के कारोबार से मुंसलिक अफराद के मुताबिक बजरीगर नस्ल के तोतों को पालकर और उनकी ब्रीडिंग कर कर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तकरीब में बजरीगर नस्ल के तोते, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, मिलास्टिक, होगोरोमो, एग्जीबिशन और डन फेलो 3 से 8 लाख रुपए तक फरोख्त किए जाते हैं। एक ऐसी हॉबी है जो आपको माइंडली भी रिलैक्स करती है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में बजरीगर की एक्सपोर्ट खलीजी ममालिक, यूरोप, लीबिया, मिस्र और दीगर ममालिक में की जा रही है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद जहां बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं मुल्की सतह पर एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट में आसानियां पैदा करके भी ज़र मुबादला में इजाफा मुमकिन है। मौजूदा दौर में बजरीगर की परवरिश एक बैनुल अक़वामी सतह का कारोबार बन चुकी है। शौकीन अफराद अपने शौक़ की तकमील के साथ साथ बेहतरीन मुनाफा भी कमा सकते हैं। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। मुजफ्फराबाद के तारीखी लाल किले की मरम्मत और इसकी असल शक्ल में बहाली के मंसूबे पर काम जारी है, जिसके बाद इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इस किले की सैर करवा रहे हैं आदिल अहमद खान। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम के किनारे सदियों से कायम ये लाल किला आज़ाद कश्मीर के तारीखी वर्से के अहम तरीन मकामात में से एक है। कश्मीर के हुक्मरान चक खानदान ने 1549 में इस लाल किले की बुनियाद रखी, जबकि बानिया मुजफ्फराबाद सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर खान के दौरे हुकूमत में 1686 में ये किला पाया तकमील को पहुंचा। सदियों से कायम ये तारीखी किला कुदरती आफात और हुकूमतों की अदम तवज्जो के बावजूद अपना वजूद बरकरार तो रखे हुए है, मगर इसकी मुसलसल शिकस्त और रेत को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने मुख्तलिफ फोरम्स पर इसकी मरम्मत और तामीर नौ के लिए आवाज बुलंद करना शुरू की। इस तारीखी वर्षे को अपनी असल शक्ल में बहाली के साथ साथ यहाँ सयाहों के लिए सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ई टिकटिंग हम बना रहे हैं, इसके अलावा वॉक थ्रू गेट लगाएंगे, उसके अलावा टिकटिंग बूथ यहाँ पे आएगा। दूसरा ये कि अंदर जो ना वहाँ पे पहले एक ओल्ड म्यूज़ियम बना हुआ था, उसको हमने डिमोलिश करके हमने उस म्यूज़ियम को ले गए हैं हुजरास के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक हम ओपन एम्फी थिएटर रख रहे हैं ताकि कल को यहाँ पे जो फोटो शूट्स हो सके या दूसरे जैसे लाहौर फोर्ट के अंदर है म्यूज़िकल नाइट्स वगैरह, तो इस तरह के फंक्शन जो ना वो यहाँ पे हो सके। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, अब कुछ मसाइल की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, ताहम प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब भी बन रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अरशद खान। बज़ाहिर गैर मुज़र नजर आने वाला प्लास्टिक एक ऐसी जिन्स है जिसका बेजा इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत पर बराह रास्त मनफी असर डालता है, बल्कि इसकी लंबे अरसे तक तहलील न होने की खासियत इसे माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब भी बनाती है। ताहम इसके हद से ज्यादा इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कवायद और ज़वाबित बनाए गए हैं। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। ताहम मुतल्लिका महकमों के गैर मुअस्सर निगरानी के बायस कानून पर अमलदारी ना होने के बराबर है। हम तो कानून को मानते हैं, आपने कहा खत्म करो, हमने खत्म कर दिया, लेकिन आप हमें अल्टरनेटिव दे दो। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स की खरीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ इक़दामात के अलावा अवाम में माहौल पर इसके असरात के हवाले से आगाही पिलाई जा रही है। इसके साथ साथ मुतबादिल के तौर पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स को भी मुतारिफ कराया गया है। एक्ट बहुत क्लियर है, इसमें इम्पोर्ट पे, स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिटेल पे प्लास्टिक की तमाम तर एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया है। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करना अगर मुश्किल है तो बाज़ रवैयों में तब्दीली लाकर इसके मुज़र असरात से माहौल को किसी हद तक बचाया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 25 से 30 लाख टन प्लास्टिक से बनी अशिया तैयार की जाती हैं, जो एक दफा इस्तेमाल के बाद नाकारा हो जाती हैं और आखिरकार कूड़े के ढेर में पहुँच जाती हैं। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, कराची के आर्ट्स काउंसिल में छठे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में सिंध के तहजीब व अदब की खुशबू 400 फैली रही। फेस्टिवल में नावल, अफसाने, कहानी और पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों का जायजा पेश किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं सुहेल जमाली। सिंध अदबी मेले की थीम माहौलियाती तब्दीली है। मेले में उर्दू, पंजाबी, सराइकी और पश्तो समेत तमाम ज़बानों के अदबी मंजरनामे पर मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिनमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। किताब, फेस्टिवल, शायरी, मौसीकी, अदब, सहाफ़त, ये वो चीज़ें हैं कि जो माशरों को जोड़ती हैं। तो हम आएंगे, एक दूसरे को सुनेंगे
जब सुनेंगे एक दूसरे की बात समझेंगे तो हमने जोड़ने की बात बनेगी। लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ नशिस्तों में मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अदब, सहाफ़त और निसाब में इस मौजू को शामिल किया जाए। इस दफ़ा जो फेस्टिवल का मौजू है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो इस वक्त की बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम इस मौजू को बहुत सीरियस अंदाज से सोचें, संजीदा होकर सोचें और उसके लिए कोई संजीदा लाए अमल तैयार करें। इस मौके पर किताबों की रूनुमाई के साथ कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया था। अदबी मेले में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए दस्तकारी की मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और डीएसपी के किरदार के साथ साथ बहुत सारे लाजवाल किरदार अदा करने वाले फ़न की दुनिया का एक और दरख्शां सितारा हमसे जुदा हो गया। टेलीविज़न और फिल्म के लेजेंडरी अदाकार कवी खान इस 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और कनाडा में ज़ेरे इलाज थे। कवी खान के फ़नी करियर के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम। मोहम्मद कवी खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड स्टार किया। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में अंधेरा उजाला, दहलीज, अंगारवादी, मुट्ठी भर मिट्टी, दिन, आशियाना, मनचले, दास्तान, बेटियां वगैरह शामिल हैं। खान साहब बहुत बड़े फनकार थे। सन 64 से अब तक मैं उनके साथ काम करता रहा और शुरू से अब तक यही सोचता रहा कि काश मैं भी उस बुलंदी को छू सकूं जहां कवी खान साहब को मैं देखता रहा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, अपने वाक़यात शेयर करते रहे। बेशक वो एक बहुत नफीस इंसान थे। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ताहम पीटीवी के ड्रामे अंधेरा उजाला में बतौर ईमानदार ऑफिसर का किरदार निभाया और उन्हें खूब शोहरत मिली। कहां से आए हो तुम? क्या करते हो? कहां रहते हो? तुम्हें कोई जानता है? तुम किसी को जानते हो? अदाकार कवी खान को उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले। कवी साहब ऐसे अनथक अदाकार थे, बगैर आराम के वो इतना काम करते थे कि मेरे ख्याल में दुनिया का कोई अदाकार इतने खुशी और खुशू से काम नहीं कर सकता। एक ऐसे फनकार जिनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। 50 बरस से ज्यादा उनसे एक एफिलिएशन रही, रेडियो, स्टेज, टेलीविजन, बहुत सारा काम किया उनके साथ। मोहम्मद कवी खान के फनी कैरियर में यादगार किरदारों के अलावा असूल पसंद इंसान की शनाख्त भी मौजूद थी। 6 माह से वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कनाडा में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कवी खान की खूबसूरत अदाकारी हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और वर्दा सलीम की रिपोर्ट में डीएसपी साहब का किरदार और उस किरदार में कितनी जान भरी और उसको किस तरह से आइडियलाइज करते हैं बच्चे, करते रहे हैं। और हम भी अभी ऑफ एयर इस रिपोर्ट के दौरान भी यही बात कर रहे थे कि इस किरदार को कितना जानदार बनाया कबीर साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामवर फनकार मोहम्मद कवी खान के इंतकाल पर रंज, गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कवी खान ने फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो पर अपने फ़न का लोहा मनवाया और भरपूर दाद समेटी। तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ात कवी खान को फ़नकाराना सलाहियतों का कवी सतह पर एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि लाखों में 3 और अंधेरा उजाला में उनकी अदाकारी अवाम के जहनों में आज भी जिंदा है। फ़न के लिए कवी खान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने भी अदाकार कवी खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि मोहम्मद कवी खान पाकिस्तान में ड्रामे के बानियों में शुमार होते थे। पीटीवी के जन्म के साथ ही उनकी फ़नकाराना सलाहियतों ने मकबूलियत की नई बुलंदियों को छुआ। जिस किरदार को भी कवी खान ने निभाया उसके साथ भरपूर इंसाफ किया और फ़न के मैदान में अपनी सलाहियतों के अनमिट नकूश छोड़े। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अदाकार मोहम्मद कवी खान की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मोहम्मद कवी खान की वफ़ात पर दिली अफसोस है। उन्होंने कहा कि कवी खान जितने अच्छे फ़नकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
गवर्नर, वज़रा, दीगर सियासतदानों ने भी मारूफ अदाकार कवी खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न के आगाज़ के साथ ही ड्रामे से वाबस्ता होने वाले फ़नकार कवी खान इस दुनिया से कूच कर गए हैं। 80 बरस की उम्र में इंतकाल किया और गुज़िश्ता रोज़ उनके ख़ानदानी ज़राए के हवाले से तस्दीक की गई थी कि उनके बेटे ने इस हवाले से बताया था कि वो जिगर के आरसे में, गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे और वो ज़ेर इलाज थे। अक्टूबर में उन्होंने कनाडा का सफ़र किया था और पाकिस्तान के बहुत सारे लेजेंडरी अदाकार ऐसे हैं जो कवी खान साहब को अपने वालिद का दर्जा देते थे और ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे फ़नकार हैं उन सब की तरबियत में, उनके सीखने में, उनको सिखाने में कवी साहब का बहुत बड़ा किरदार हो। चाहे वो नाज़िया डायरेक्टली बतौर उनके साथ काम करते हुए सीखा हो या फिर उन्होंने उनका काम देखते हुए सीखा हो। पाकिस्तान के बड़े बड़े अवार्ड्स भी उन्होंने नाम किए। ना सिर्फ ड्रामा की बात की जाए तो फिल्म में भी कवि साहब ने बहुत 200 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया और अपने फ़न का लोहा मनवाया। बिल्कुल जी, और ये वो नाम हैं जो हमेशा अपने काम की वजह से ज़हनों में, दिलों में ज़िंदा रहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। रावलाकोट, बड़ा चनार और शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। आज रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत लेह -7 डिग्री सेंटीग्रेड, कालाम -3, रावलाकोट, अस्तोर में -1 और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मौसम के हवाले से आपको आगाह किया तफसीलात से। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौसम खुश्क है, तो हम अब टेम्परेचर्स तब्दील होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ रात के औकात में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खुनकी बरकरार है, लेकिन बेशतर मैदानी इलाके ऐसे हैं जहाँ से धुंध भी ख़त्म हो चुकी है। बारिशों का एक अच्छा स्पेल गुजरा है बालाई इलाकों में। उसके बाद आज भी रिपोर्ट ये थी कि चंद इलाकों में बारिश हुई है। तो हम आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये जानेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। अच्छा असलम साहब, ये फरमाइएगा कि आइंदा चंद दिन के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में मौसम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, दिन में अलग होता है और शाम में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौसम हमें देखने में मिलता है। तो ये जो सूरत हाल है मौसम की, ये कब तक बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, अभी आने वाले दिनों में कोई बारिश का कोई सिस्टम नहीं है, तकरीबन ड्राई वेदर होगा कोई कम से कम एक वीक के लिए। और इसमें टेम्परेचर कोई मामूल से ज्यादा होगा पूरे पाकिस्तान में। और सुबह के टाइम जैसे आपने कहा थोड़ी सी खुनकी होती है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी है उसमें यही है कि आने वाले दिनों में मौसम खुश्क और गर्म होगा। कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तब्दीलियाँ देखने में आई ऐसी थी वेदर के हवाले से कि टेम्परेचर्स एकदम ऊपर जाते हैं और या फिर ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे अभी नाजिया भी कह रही थी कि रात के वक्त में ख़ासतौर पर मौसम काफ़ी खुनक हो जाता है बालाई इलाकों में। इस मौसम के हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए भी इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, बात की जाती है, लोगों को डराया जाता है जी हीट वेव्स मार्च में ही आ जाएंगी और मार्च से लेकर अप्रैल मई में हीट वेव्स रहेंगी। कुछ इस तरह की इत्तलात हैं महकमा मौसमियात की जानिब से? देखिए, अभी पीएमडी जो है इसको मॉनिटर कर रहा है। अभी कोई टेम्परेचर तो मामूल से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी जो हीट वेव के चांसेस तो है, लेकिन अभी कोई महकमा मौसमियात अभी मॉनिटर कर रहा है। अभी कोई मौसमियात की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी, कोई इशू अभी तक नहीं हुई। अच्छा असलम साहब, हम देख रहे हैं कि अब आपने कहा कि बारिश हुई है और ये बारिशें गुजर चुकी हैं। अब गंदम की जो फसल है वो तकरीबन तैयार भी हो रही है। इस मौके पर बालाई इलाकों में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में किस तरह का मौसम रहेगा? किसानों के लिए कौन सा मौसम ज़रा बेहतर रहेगा? जी अभी तो जैसे मैंने कहा कि अभी तो कोई बारिश का फिलहाल कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है अपने कोई आने वाले दिनों में 10 दिन तक कम से कम। तो इसमें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो किसानों को चाहिए कि अपनी फसलों को मौसम के मुताबिक पानी दे, क्योंकि जल्दी जो गर्मी भी आना चाहिए, जो गंदम की फसल है उसके लिए कोई ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होगी।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मौसम के हवाले से तफसीली बात भी की। और रिजवान, इस वक्त जो मौसम है वो मुसलसल हो रहा है, तो ऐसे मौसम में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वायरल बीमारियां हैं वो भी सर उठाना शुरू कर देती हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी है। ठंडे पानी की तलब होती है, लेकिन ये इस्तेमाल करने से परहेज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी मत इस्तेमाल कीजिए, अपने हवा से और हवादार इन्वायरमेंट को चूज़ कीजिए, सायादार। और वैसे इस मौसम में तो शजरकारी भी जारी है, और देख रहे हैं कि बाकायदा इस हवाले से जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो इसको प्रमोट भी कर रही हैं कि शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, और यही वो दरख्त हैं जो कि हमें माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मददगार भी साबित होते हैं। बिल्कुल, और इस तमाम तर सीज़न के साथ एक और सीज़न भी चल रहा है जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न है, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक। हम हर वक्त होशियार रहने पर मजबूर हैं पाशा। इस रियासत का हर बच्चा हमारा बच्चा है। एक ऐसा बुज़दिल शहजादा जो अपने ओहदे और मुहाफिजों के पीछे पनाह लेता है। दुश्मन हमारे बीच में मौजूद है। हमारा मंसूबा बहुत बड़ा है। अगर एक और गलती की तो हमें अपनी जान देकर उसकी कीमत अदा करनी होगी। खलील खालिद, पाए तख्त की हिफाजत यकीनी बनाओ। कौम को तकलीफ देने वालों पर कोई रहम नहीं करूंगा। इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? कोई हमें नहीं रोक सकेगा। तुम मुझे मार दोगे, उससे पहले मेरी एक पेशकश सुन लो। कहो। हमें शक है कि वो फौज साहब को अस्पताल से अगवा करवा लेगी। मैं आपकी हिमायत करूंगा। आप वो असलहा पाया तख्त लाएंगे सबाहद्दीन साहब, और यहाँ मौजूद हमारे भाइयों को दे देंगे। ये मंसूबा नौजवान तुर्कों को याद दिलाएगा कि वो किससे लड़ रहे हैं। हमला! करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, जिसके दिलचस्प मुकाबले इस वक्त जारी हैं, और इवेंट के 22वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। 7 बजे एक्शन बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स AG पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान रवा सीजन का ये दूसरा मैच है। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 रन से कामयाबी हासिल की थी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स की टीम 5वें, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है। और अब पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग 8 में पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। दोनों टीमों ने प्ले ऑफ मरहले में रसाई हासिल की है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी की 6 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन है। कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ 5वें, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सिर्फ एक ही मैच जीतकर आखिरी नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान सुपर लीग में कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों मैच रावलपिंडी में शेड्यूल हैं। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीम्स दिन 2 बजे आमने सामने होंगी। दूसरा मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन खेला जाएगा। मेगा इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स AG पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL के अहवाल के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।